In this class, we will be discussing about more on human-animal interaction in relation to animal welfare. So under this human-animal interaction with respect to animal welfare, we'll be talking on different aspects. One was importance of animal domestication in animal welfare, chronological development of animal domestication, human-animal interaction in relation to animal welfare, positive and negative human-animal interaction. Okay, so these are the areas which we will be talking about today. Okay, so why this topic, that is human-animal interaction in relation to animal welfare, is very important. So you all know that in major or metropolitan cities, many people, they really don't know about the rearing of animal at all. Many people are there still in the metropolitan cities like Bombay, Bangalore, okay, Chennai, where they don't know how milk is derived. They don't know how meat is obtained. So naturally, they don't have any feeling for the animals. They think that they just like any other commodity. Some people, they don't know how the chocolate is made. Only know that it is one of the eating item. So that's why that respect or concern towards the animal does not arise at all. Okay. On the contrary, suppose if you are born and brought up in the rural area where the scenario of animal rearing is very routine, how animals are being treated, how animals are being brought up, okay, how animals are being fed, everything they know it. So you will understand what exactly it is, rearing of animal. Okay. So the interaction with the animal, it all depends upon the many factors. It's not 1, 2, 3. There are many factors which will decide the interaction with the animal. But on the other hand, what we call it as the animal today, domestic animals, which are presently staying with you, now we are talking about how to treat them. एक टाइम में सारे animals, including human beings, used to be in the forest as a wild animals. But contrary, as of now, we are talking about how to keep the animal, how to rear the animal, how to treat the animal. Why this situation has come? Why this scenario has come? Really, are they different than human beings? For all such questions, the domestication will play major role. इसलिए आपको एक बार this process समझ में आ जाएगा, then you will know why you should treat the animal best or how you should treat the animal best. All will be clear. Okay. So before going to the domestication, there is another word called evolution. Okay. 3 terminologies use करेंगे: evolution, domestication, and ecosystem. They are interlinked. So you need not worry much about this one. Okay. So when you say evolution, it's a gradual process that occurs through natural selection, where random mutations are sorted and adaptive variations are passed at a higher rate than the less adaptive ones. This process results in a small changes in the composition of genes and alleles. कहने का मतलब ये है, आज के दिन में wild animals which are not genetically altered, which are not morphologically changed, and their behaviors are intact. जिस तरीके से पहले था, आज भी वैसे ही है. बट जिस तरीके से पहले था, जिस समय हम लोग भी इवॉल्व नहीं हुए थे, ओके, जिस तरह से आज हम लोग भी कंसिडर एज ए हाईएस्ट ऑन द फूड पिरामिड, बट एक टाइम में भी हम लोग भी एनिमल थे. सो दैट फॉर टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर पॉइंट, that evolution we are discussing. Okay, means in the process of evolution, gradually we become one of the top species in the ecosystem or on this earth planet. Okay, और बहुत सारे animals in the process of evolution extinct हो गए, बहुत सारे animals survive हो गए, और बहुत सारे एनिमल जो सर्वाइव हो गए, बहुत सारे
मॉर्फोलॉजिकली आल्टर हो गया, जेनेटिकली नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली आल्टर हो गया, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। बट अभी एक स्टैग्नेशन में आ चुका है। बट व्हेन यू कंसिडर एवोल्यूशन बिफोर डोमेस्टिकेशन, व्हाट वी आर टॉकिंग, ओके, आई गिवन फ्यू एग्जांपल्स। एक टाइम में हाथी का ट्रंक इतना लंबा नहीं हुआ, बट एज ऑफ नाउ द ट्रंक इज वेरी लॉन्ग। दैट इज adaptive phenomena for the survivability. So likewise, many of the animals, they are not genetically altered, but morphologically they have been evolved. But now they are stagnant. It means that they are fit to survive in this nature. At the same time, जो वाइल्ड एनिमल में है, वाइल्ड कंडीशन में है, वहां भी बहुत सारे चेंजेस इकोसिस्टम के हिसाब से चेंज होते जा रहे हैं। जैसे एक टाइम में लायन को कहा जाता था किंग ऑफ द जंगल, बट नाउ इन मेनी ऑफ द सिनेरियो बफेलो डोमिनेट्स ओवर द लायन। प्रोबेबली मेनी आपका यूट्यूब में शॉर्ट्स में आया देखा होगा, मेनी टाइम्स इवन देयर इज ए थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर द लायन आल्सो। दैट इज एन एवोल्यूशन प्रोसेस, बिकॉज अल्टीमेटली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो एवोल्यूशन है दैट इज ओनली अप टू वाइल्ड एनिमल तक है। बट व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। नाउ डोमेस्टिक एनिमल का अपोजिट हो गया वाइल्ड एनिमल्स। जो ह्यूमन बींग के लिए आज के दिन में जो कहते हैं सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग, बट उसका अपोजिट हो गया ट्राइबल्स, जो अल्टर्ड नहीं हुए। ठीक है ना? तो इन द प्रोसेस ऑफ evolution, now there is a stage where everything is stagnated. Okay, after that one of the species they start dominating. ठीक है, इवॉल्व होते होते फिर कुछ स्पीसीज डोमिनेट होते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स है, और ह्यूमन बींग्स के इन एंड और इमीडिएट सराउंडिंग में जो भी स्पीसीज उनके साथ रहे वो बाद में डोमेस्टिकेट हो गए। ठीक है। Now it is proved that humans and animals share common ancestors as per the evolution process. Thus, it's likely that animal capacities are similar to human beings, but these capacities differ only in degree. आज के दिन में हम लोग टोटली डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं बिकॉज ऑफ आवर वेल डेवलप्ड ब्रेन। थिंकिंग जितना हमारा है उतना एनिमल्स का नहीं हुआ, बचाओ एवरीथिंग इज सेम। ओके, इफ द कैपेसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर फीलिंग गिव्स एन अडैप्टिव एडवांटेज टू एन एनिमल, then this provides a supportive evidence for its existence. कहने का मतलब है यदि कोई भी एनिमल आज एग्जिस्ट करता है, अगर उसके लिए कोई पर्टिकुलर फीलिंग है एंड दैट पर्टिकुलर फीलिंग गिव्स एन अडैप्टिव एडवांटेज, इट मीन्स दैट दे आर लाइक ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स में जब छोटे बच्चे होते हैं, जब भूख लगता है रोते हैं, एनिमल में क्या होता है चिल्लाते हैं। ठीक है, सिमिलरली छोटे बच्चे में कोई भी चीज उनको लगता है कि केयर चाहिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इट डज ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज। ठीक है, सिमिलरली इट हैपेंस विद द एनिमल्स आल्सो। इट मींस दैट वी आर शेयरिंग द सिमिलर न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, द वे इट एग्जिस्ट इन द ह्यूमन बींग्स, इट इज सिमिलर टू द एनिमल्स। इज इट ओके? मींस वी आर नॉट ओनली फिजिकली वी आर सिमिलर टू एनिमल्स, but neurologically. Because neurological क्यों आ रहे हैं यहाँ? Because we are telling another domain of the animal welfare, that is what animal feels. Okay, with that context. Now, in the process of evolution, then there is the establishment of ecosystem. ठीक है ना? In a given area, there is a development of ecosystem. In that ecosystem, depending upon the existence of living and non-living organisms, कुछ species dominate करते हैं, कुछ species dominate नहीं करते, even in the wild, even in the domestic condition also. इसलिए आपको देख सकते हैं, you will not find the uniform distribution of either domestic animals or wild animals. आज भी rhinoceros आपको कहाँ मिलेंगे? Only Indo-Nepal border. आज भी wild ass कहाँ मिलेंगे आपको? रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। आज भी आपको बेस्ट मुर्रा ट्रैक बफलो मिलेंगे मुर्रा ट्रैक में, दैट इज ए पाकिस्तान इन इंडिया बेल्ट। इट मीन्स दैट ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पर्टिकुलर स्पीसीज डेवलप हुआ है। यू गॉट इट? सो इन दैट इकोसिस्टम, सो देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन दिस सेंस,
A nature of including millions of animals are systematically exploited every day for more profits and income. इसीलिए कुछ स्पीसीज वेनिश हो जाते हैं, कुछ स्पीसीज डोमिनेट हो जाते हैं, कुछ स्पीसीज रह जाता है. आज भी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई ओनली फ्यू स्पीसीज हैव बिकम डोमेस्टिक एनिमल्स. आज भी याक एनिमल को फुल्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं कहते हैं. आज भी मिथुन को भी फुल्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं कहते हैं. Only why sheep and goat? Why only cat and buffalo? Only why dog and cat? Why not wolves? जो उसका प्रीवियस एंसेस्टर्स है, डॉग का एंसेस्टर्स वुल्फ है, वो भी साथ साथ में रह सकते थे, बट नहीं है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लोकल इकोसिस्टम. जो उस एरिया में, उस एनवायरमेंट में जो ह्यूमन बींग्स के साथ जो भी स्पीसीज रहा इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, वो ग्रेजुअली दे चेंज्ड. ओके, बाद में एक टाइम के बाद देन ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया देन उसका इंटरवेंशन आ गया. इन एन इकोसिस्टम इंटरेक्शन इज इनएविटेबल. सो दैट्स व्हाई इट स्टेट दैट विदाउट द डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बाय ह्यूमंस, ह्यूमन रेस वुडंट हैव प्रोबेबली एग्जिस्टेड. कहने का मतलब है, अगर एवोल्यूशन में भी अगर छोड़ देते आज के दिन में, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, हो सकता है ह्यूमन बींग्स भी एक्सटिंक्ट हो जाता. बट ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट क्विकली हो गया. देन ही स्टार्टेड क्लेमिंग सम ऑफ द डोमिनेशन ओवर द इकोसिस्टम बाय कीपिंग फ्यू एनिमल्स. धीरे धीरे क्या किया, एवोल्यूशन में अपने आप कुछ चेंजेस होते आ रहे हैं. बट जब ह्यूमन बींग्स फ्यू स्पीसीज को जब रखने लग गए, ड्यू टू इज अल्टरेशन, नॉट ड्यू टू इज इंटरवेंशन, द स्पीड ऑफ चेंज इंक्रीज्ड. Speed of getting desirable traits increased, and in this process there is a alteration in the genetics of the wild animals that we call as domestication. You got it? Evolution, then ecosystem, then domestication. So now domestication. Now this is more important, क्योंकि डोमेस्टिकेशन में भी आपके आज में एनिमल में जो एग्जिस्ट करते हैं, few animals still they exhibit the wild traits. ये सब क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज जब भी एनिमल को हम लोग को कैसे ट्रीट करना है, कैसे रखना है, कैसे उसको रख रखाव करना बात आता है, इट इज नॉट ओनली वन पॉइंट ऑफ व्यू. आपका अपनी पर्सपेक्टिव में कोई भी चीज करते हैं, दैट इज नॉट द राइट. आपका मोटिव सिर्फ इकोनॉमी से रहेगा, बट वो नहीं होना चाहिए. आपको याद में रखना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक लास्ट हो गए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस नहीं हो पाए, क्या क्या कंडीशन वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड कंडीशन में थे जो आज भी रह जा रहा है. उसको देखते हुए इफ यू ट्राई टू मैनेज सुपरवाइज एनिमल, देन एनिमल मे नॉट फील स्ट्रेस्ड. दैट इज द ओनली मेन मोटिव बिहाइंड स्टडीइंग द डोमेस्टिकेशन. देन व्हाट इज डोमेस्टिकेशन? ए प्रोसेस वेयर ह्यूमंस आर आर्टिफिशियली सेलेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर सर्टेन क्वालिटीज, okay, and those with traits due to which they survive and reproduce, and this process can result in large phenotypic changes in the behavior and physiology, and such making animal less aggressive and increasing the seed size in the plant. Ultimately जो भी उनका डिजायरेबल चाहिए वो चेंज होता जाएगा, बिकॉज उनका प्रेफरेंस वही रहेगा, उसी की वजह से होगा. साथ साथ में हम लोग भी चेंज होते जा रहे हैं. हम लोग भी कहते हैं, अगर आप मान लीजिए if you are born and brought up in the cities, you may be considered as more of civilized. If you go to rural area, there is a totally a different scenario. ठीक है ना? Similarly, animal में भी क्या है, जो डोमेस्टिक एनिमल आपके साथ रह रहे हैं, they are of more civilized, but वही एनिमल्स फॉरेस्ट में रह रहे हैं, they are in the wild condition. Okay, so जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स दे स्टार्टेड बिकम मोर सिविलाइज्ड, उसी तरह से एनिमल का ट्रीटमेंट जो है कमोडिटी जैसे हो गया, बिकॉज एवरीथिंग ही थिंक्स इन द टर्म ऑफ कमोडिटी आर विथ रेस्पेक्ट टू मनी. ओके, सो दीज चेंजेस जो डोमेस्टिकेशन से हुआ, दीज चेंजेस कैन मेक द डोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स easier to handle and reduce their ability to survive in the wild. Domestication is a human driven process that is a part of evolution. It means that whatever the animals which they came in close with the association of the animal, human beings, they started becoming more of tamed or
more of towards the what you can say less wilderness. ठीक है, जैसे जैसे they become domesticated, then they started becoming more on dependent on the human being. This is the question lies. जब आपके वजह से इतना एनिमल चेंजेस हो गया और आज के दिन में अगर आप सही तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तो देन होल पर्पस इज डिफिकल्ट. इसलिए इन द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन क्या क्या हुआ, सो दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो इन द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन एनिमल लॉस्ट अग्रेसिवनेस, एनिमल लॉस्ट मेनी ऑफ द दैट बिहेवियर विच वाज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट. ठीक है ना, जैसे एनिमल्स उस समय ग्रुप में फ्लॉक में रहते थे बिकॉज टू गेट द प्रोटेक्शन. They used to walk for kilometers to get the food and water. Now everything is depend on you. If you provide, they will be happy. If you don't provide, then they will be under stress. This domestication is also defined as the adaptation of an animal or a plant to life in an intimate association with and to the advantage of man or another species by modifying the growth and trade through the provision of food, protection from the enemies, and selective breeding during the generation of living in association, and often to extend that domesticate form lose ability to survive in the nature. इसलिए अगर एक बार डोमेस्टिक एनिमल हो गया, यही एनिमल अगर आप फॉरेस्ट में छोड़ देंगे, it cannot survive because already it is lost its wilderness. It's bound to die or killed by the wild animal. ठीक है ना. Similarly, domesticated animals are plants that people have consciously taken into the cultural context of their living space for any purpose whatsoever it may be. Means जैसे हमने इकोसिस्टम बता रहा था, उसी तरह से इवन अमंग द डोमेस्टिकेटेड एनिमल, आप एशिया में जाएंगे दूसरा तरीका रखना पड़ रहा है, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो बिकॉज उनके कल्चर के हिसाब से द वे अगेन दे हैव बीन डोमेस्टिकेटेड डिपेंड्स अपॉन योर कल्चर विच इज प्रेजेंट इन द लोकल एरिया. इन द लोकल एरिया, इट्स नॉट दैट कि डोमेस्टिकेशन के बाद सारे एनिमल एक ही जैसे. अगर आप ऐसा होता तो देन दिस वीनिंग कॉन्सेप्ट वुडंट हैव लेड टू एनी कॉन्फ्लिक्ट. हम लोग के एचएफ, जर्सी, ब्राउन स्विच जितना भी एक्सोटिक एनिमल है उसमें वीनिंग आराम से कर लेते बिकॉज मदर मैटरनल इंस्टिंक्ट कम है. बट डोमेस्टिक एनिमल सर हमारा वो लोकल एनिमल में मैटरनल इंस्टिंक्ट आज भी स्ट्रांग. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इन द गिवन एनवायरमेंट. सेम दोनों कैटल होने के बाद भी, दोनों डोमेस्टिकेटेड होने के बाद भी देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द मैटरनल इंस्टिंक्ट. ठीक है ना. दैट्स व्हाट वी वांट टू से दैट whatever the domestication takes place, it takes place in the local scenario as per the local need. Okay, so in the both the definition what we have discussed above have the states that these animals are artificially modified to meet the human purpose. So domestication जो main purpose है to fulfill the need of the human beings. Okay, जब उनका human requirement का fulfill कर दिया, then when they are dependent on you, then their survivability will depend on human beings. It is as simple as that. That's what I given in the second graph. Okay, so now last statement state that through the selection process, human change the domesticated animals' behavior, psychology, and morphology. And these domestication can show morphological characteristics which would not occur in the wild and vice versa. ठीक है, जितना भी बिहेवियर आज के दिन में हम देखते हैं वो वाइल्ड एनिमल में हो सकता वो मिलेगा ही नहीं आपको. जितना वाइल्ड एनिमल में बिहेवियर इनका था आज के दिन में डोमेस्टिक एनिमल में वो एग्जिबिट ही नहीं हो रहा हो. इतना चेंजेस ऑलरेडी एनिमल में आ चुका है. व्हेन यू हैव मेड दी सो मच चेंजेस इन द एनिमल्स इन द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन फॉर योर रिक्वायरमेंट, नाउ इट्स योर मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स. ओके, दैट्स द मेन मोटो ऑफ दिस वन. ओके, प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन. प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन में क्या क्या होता है? So when Darwin proposed that domestic animals were modified through unconscious selection long before man selected for specific character. कहने का मतलब है जब एवोल्यूशन हो रहा था, डोमेस्टिकेशन तो एनिमल का इंटरवेंशन था, ह्यूमन बींग्स का इंटरवेंशन था, बट सम ऑफ द चेंजेस विच वर गोइंग अनकॉन्शियसली इवन बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ द मैन. ओके, क्योंकि उनका सर्वाइविलिटी का मामला था. बट ओनली थिंग इज दैट process was slow. Okay, the changes in the population occurred because man preserved the animals most useful or pleasing to him and destroyed or neglected the others
without any conscious intention of altering the stock. What does it mean? Means that सपोज मान लीजिए आपका फॉरेस्ट कंडीशन में जब डोमेस्टिकेशन हो रहा था उस समय भी ह्यूमन बींग्स भी वाइल्ड एनिमल कंडीशन वाइल्ड फॉरेस्ट में ही रहते थे, इजंट इट? जब उन्होंने कुछ एनिमल को रखने लग गए और रखने के टाइम में इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दीज एनिमल्स बहुत सारे बिहेवियर चेंज हुआ। अगर उस समय वो एनिमल को केयर नहीं करेंगे तो उसी समय एनिमल वो खत्म हो जाता। यू गॉट माई पॉइंट? सपोज फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन, flight and fight reaction. Let us take example of dog, cat, sheep and goat. Animal human beings के साथ रहते रहते अगर उसका डिस्टेंस कम हो गया, कम होने के बाद यदि आप उस एनिमल को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरा एनिमल के लिए दे में फॉल प्रे, मर जाएंगे, क्योंकि वो इतना डर खत्म हो गया तो भाग भी नहीं पाएंगे, फाइट भी नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज दे आर द टू इंस्टिंक्ट व्हिच विल हेल्प इन द सर्वाइवबिलिटी इन द नेचर। बट उस चीज को धीरे 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 उसको आपका डर खत्म कर दिया, वापस फाइट करने का एबिलिटी खत्म कर दिया। उस समय अगर प्रोटेक्शन नहीं करते फिर वो एनिमल वैनिश हो जाता। वही कहने का मतलब। ओके, द सिलेक्शन इज गिवन डायरेक्शन व्हेन द मैन डिसाइड्स ऑन ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड डायरेक्ट्स द इंप्रूवमेंट ऑफ हिज एनिमल अलोंग द टाइमलाइन। जैसे जैसे नीड के हिसाब से उनका सिलेक्शन चेंज होता गया। टुडेस रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, इफ यू गो लॉन्ग बैक देन दैट रिक्वायरमेंट ऑफ इस सिलेक्शन वाज डिफरेंट। ओके, जैसे पहले द ब्रीडर्स ऑफ कॉक्स वर सेलेक्टिंग फॉर द फाइटिंग, sheep were selected for the wool, cattle was for the milk, turkeys for the meat, ox for the speed, like that they were selected. Okay, but आज के दिन में फर्दर इंप्रूवमेंट का एक्सप्लॉयटेशन तक गए। पहले तो उनका अपना रिक्वायरमेंट था, जैसे उनको 2 लीटर मिल्क चाहिए उसी के हिसाब से उनका जो भी होगा उतने का। बट नाउ यू वांट टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, आप अपने पे लिए रखेंगे और पैसे भी कमाएंगे। देयर इट हैज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। ओके, so in the process of domestication it is believed that many anthropologists believe that animals were not initially domesticated for the economic reason. That's what I want to say. उस समय अपने जितना रिक्वायरमेंट था, उसके लिए कपड़ा चाहिए था इसलिए एनिमल मारा उन्होंने, स्किन के लिए यूज किया। जब भी एनिमल नेचुरल डेथ हुआ उसका स्किन यूज किया। जब भी उनका भूख लगा एनिमल को उन्होंने किल किया और उसको ये किया। उस हंटिंग प्रोसेस में डॉग यूज किया। ठीक है, जितना भी उनका रिक्वायरमेंट था उतना ही तक उनका सीमित था। बट एज ऑफ नाउ इट इज ऑल विथ रेस्पेक्ट टू economics. Okay, so few people suggest that ceremonial or religious basis for the domestication, and others believe that man may have only vaguely realized what was happening as a loose social bond developed between the animal and him. Okay? जैसे जैसे डोमेस्टिकेशन प्रोसेस हो रहा था उसको ये नहीं पता था कि दैट्स कॉल्ड डोमेस्टिकेशन, बट अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जैसे जैसे एनिमल को क्लोजली रखने लगा, इन दैट प्रोसेस ही एस्टेब्लिश्ड द बॉन्ड। So that is the second process. First process was for his need, जैसे dog and cat for the hunting purpose, cattle was for the milk purpose, sheep and goat for the meat purpose, वहां तक था। बट रखते 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 एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप में कन्वर्ट होगा करके उनको खुद को भी नहीं पता। तो लेटर ही स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग द बॉन्ड। उसके बाद ही ये कंपनी एनिमल का, पेट एनिमल के सारे कॉन्सेप्ट आ गए। टिल देन इट वाज इमीडिएट रिक्वायरमेंट। ओके, the domestication of animal is a recent event in human history and is defined as that condition wherein the breeding, care, feeding of animals are more or less controlled by the man. Okay, and in the modern husbandry and laboratory practices, complete control of breeding and maintenance is typical. What we mean to say that अभी आपको कंपल्सरी इसी तरह से करो करके कहना पड़ रहा है, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि पहले कैसे होता था, कैसे रेट किया था। आज भी देखिए मेनी ऑफ द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं पता होगा बट आपका पेरेंट्स को पता होगा, क्योंकि आपने देखा नहीं, आपको इमेजिनेशन आएगा ही नहीं। ठीक है ना, जो चीज नेक्स्ट जनरेशन आएगा, जो चीज आपने देखा हो सकता वो जनरेशन नहीं देखेगा। उसी तरह से यहाँ भी सेम सिचुएशन है। आज के दिन में वी हैव टू बाउंड टू टेल हाउ टू कीप, हाउ टू रेज द एनिमल, बिकॉज दे डोंट नो हाउ दे वर एग्जिस्टिंग इन द वाइल्ड कंडीशन। सो नाउ इट हैज बिकम मोर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू raise the animals as a guidance. Okay, साथ साथ में कैरेक्टरिस्टिक फेवरिंग द डोमेस्टिकेशन। नाउ 3 चीज मैं जस्ट रिकैपिटुलेट करूंगा। एवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस था जिसमें एनिमल
जो फिट रहे वो एक सर्वाइव हो गए, जो नहीं फिट रहे वो वैनिश हो। इन द मीन टाइम ह्यूमन के डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ा, देन ही स्टार्टेड कीपिंग फ्यू एनिमल्स। इन दैट प्रोसेस देयर वाज ए डोमेस्टिकेशन। ओके, जब डोमेस्टिकेशन कर रहा था अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ग्रेजुअली स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग सम बॉन्ड, एक अफिनिटी डेवलप हो गया उनके साथ, ठीक है ना, इसीलिए उनका और इंटीमेसी बढ़ गया। बट साथ साथ में जो एनिमल वो रखने चाह रहे थे, गेटिंग माय पॉइंट, जो एनिमल, ऐसे नहीं कि he has not attempted to keep tiger, he has not attempted to keep the jackals, he is not attempted to keep any other wild animals, he might have attempted almost all the animals, बट कुछ ही एनिमल उनके साथ रहे, कुछ ही एनिमल उनके लिए फुलफिल किया उनका अपने डिमांड, कुछ ही एनिमल उनको इमोशनली लिंक हो गए। उसका रीजन है बिकॉज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच विल फेवर द डोमेस्टिकेशन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फेवर करते ही नहीं। और जो एनिमल आज के दिन में डोमेस्टिक एनिमल हमारा साथ में है वो फेवर किया डोमेस्टिकेशन प्रोसेस से, जो एनिमल हमारा साथ में नहीं है वो फेवर नहीं किया। वो क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए यहाँ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेस्टिकेशन। सपोज मान लीजिए ग्रुप स्ट्रक्चर, अगर कोई भी स्पीसीज ए लार्ज सोशल ग्रुप में रहा, एक ट्रू लीडरशिप के साथ रहा, वो हमेशा डोमेस्टिकेशन के लिए फेवर किया। यू कैन टेक ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे साथ में है वो सारे फेवरेबल में रहे, इसलिए वो आज भी देयर एग्जिस्टिंग। ओके, उसमें कौन सा है, ग्रुप स्ट्रक्चर में लार्ज सोशल ग्रुप में जो रहते हैं, ट्रू लीडरशिप के साथ रहते हैं, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड फेवरेबल। अनफेवरेबल क्या है, उसका ऑपोजिट फैमिली ग्रुपिंग, जहां इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होगा, छोटे छोटे ग्रुप में रहेंगे, जिसमें रिप्रोड्यूस होने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा। हायरार्किकल ग्रुप स्ट्रक्चर मीन्स बड़ा सोशल ग्रुप में रहेंगे, बट देयर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हायरार्किकल ग्रुप, मीन्स अल्फा बीटा गामा। मीन्स अल्फा जनरली क्या होगा, द मोस्ट डोमिनेट एनिमल, जो ट्रू लीडरशिप करेगा, उस ग्रुप को, सोशल ग्रुप को लीड भी करेगा, और वही मेल फीमेल को मेट भी करेगा, जिसकी वजह से वो जनरेशन टू जनरेशन और प्रोपेगेट हो जाता है। बट वही टेरिटोरियल स्ट्रक्चर होता है, जैसे टाइगर है, जैसे लायन है, ओके, जैसे लेपर्ड है, दे आर टेरिटोरियल एनिमल्स। मीन्स वो जैसे जब तक रहेंगे वो हमेशा अपना एक एरिया डिफाइन करते हैं, और जब भी दूसरा एनिमल उस टेरिटरी के अंदर आएगा, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज ए झगड़ा होगा, ठीक है ना। खास तौर से ब्रीडिंग, कभी कभी फीमेल को विच इज इन ईस्टर्स आल्सो मे नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू मेट विथ एनी ऑफ द मेल बिकॉज ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसलिए उनका एनिमल कंसीव होना ही एक बड़ा डिफिकल्ट है। इवन इन द जू आल्सो यू माइट ऑब्जर्व दिस, बट इफ यू टेक एनी herbivorous animals, they mostly live in the large social groups, okay, and propagation का कोई इश्यू ही नहीं है। मेल अफिलिएटेड विद द फीमेल ग्रुप, मीन्स मेल फीमेल के साथ हमेशा रहेगा, बट ग्रुप में ही रहेगा, भले वो डोमिनेट करेगा विद इन द मेल, देयर विल बी एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हायरार्की, मेल फीमेल, सॉरी मेल अल्फा में होगा, फीमेल सॉरी बीटा मेल भी होगा, बट मेल जो डोमिनेट करेगा वही मेट करेगा। बट इसमें क्या है, जो मेल इन सेपरेट ग्रुप, आप एलिफेंट ले लीजिए, मेल हमेशा अपना एक फैमिली ग्रुप से हट के रहेगा, ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन दे कम टुगेदर, ट्रस्ट ऑफ द टाइम्स मेल इज ऑलवेज सेपरेट। बचा हुआ फीमेल का है, वो मदर का सिस्टर्स, उसका यंग वन, सारे एक ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। आप जितना भी कार्निवर्स ले लीजिए, बिग कैट्स ले लीजिए, दे आर ऑल टिपिकली टेरिटोरियल एनिमल्स, और मेल्स ऑलवेज लिव सेपरेटली, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीडिंग विल रिड्यूस। इसी की वजह से वो डोमेस्टिकेशन फेवर कभी करेगा नहीं, क्योंकि एक एनिमल को आप समहाउ डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, बट टू प्रोपेगेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप एक मेल एक फीमेल आप साथ साथ में रख नहीं सकते, क्योंकि उसको टेरिटोरियल कारण। सेकंड, सेक्सुअल बिहेवियर, प्रोमिस्क्यूअस मेटिंग एंड पेयर बॉन्ड। प्रोमिस्क्यूअस मीन्स एनी मेल कैन मेट विथ एनी फीमेल एंड वाइस वर्सा, ओके। बट कुछ स्पीसीज होता है, दे मेक पेयर बॉन्ड मेटिंग, और दे मेक पेयर एस्टेब्लिश दैट रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक बार एस्टेब्लिश हो गए मेल फीमेल का, दे विल रिमेन टुगेदर लाइफ लॉन्ग। जैसे आपका हॉर्नबिल है, लार्ज हॉर्नबिल, स्मॉल हॉर्नबिल, वंस दे मेक पेयर दे रिमेन टुगेदर, ओके। मेल्स डोमिनेट ओवर द फीमेल, और इन केस ऑफ मेल मस्ट एस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर एंड अपीज द फीमेल। दोनों में डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, दे लिव इन द सोशल ग्रुप, और उसी सोशल ग्रुप में मेल भी रहेंगे, और मेल हमेशा लीडर रहेगा, जिसकी वजह से वो फीमेल के ऊपर मेटिंग
रिपीटेडली करता है. बट इन केस ऑफ टेरिटोरियल एनिमल्स, फर्स्ट एज एंड व्हेन फीमेल एक्सप्रेसेस ईस्ट्रस सिम्टम्स, फर्स्ट इट हैज टू फाइट विथ अदर एनिमल्स और टेरिटोरियल एनिमल्स. ठीक है, पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, आई एम द डोमिनेस्ट एंड आई एम द स्ट्रांगेस्ट वन, देन ओनली इट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट. Even in case of dog also it is same. Okay. Similarly, signals given during the breeding period by more of movement or posture, वो favorable है. But by color marking or morphological structure कभी भी favorable में नहीं रहेगा. Similarly, parent-young interaction. Critical period development में there is the establishment of mother-young one बॉन्डेज विच वी कॉल एज इम्प्रिंटिंग. एक बार वो इम्प्रिंट हो गया, वो लाइफ लॉन्ग तक वो इट इज एबल टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज माय मदर. ओके. बट इन केस ऑफ नॉन फेवरिंग में स्पीसीज बॉन्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक मीन्स एनिमल का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे होता है होगा तभी उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. सपोज इन केस ऑफ फ्यू स्पीसीज यू कैन रेयर द यंग वन ऑफ अदर स्पीसीज आल्सो. अगर साथ साथ में रह के क्रिटिकल पीरियड में दूसरा स्पीसीज के यंग वन में रहेगा और दूध पिला दिया, अगर इम्प्रिंट हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया बॉन्ड, तो ऑटोमेटिकली इट विल एक्सेप्ट एज ए मदर और यंग वन. बट वो चीज अदर एनिमल में नहीं होता, जैसे कार्निवोर. ओके. दूसरा स्पीसीज आ गया तो उसको किल कर देंगे. ओके. फीमेल एक्सेप्ट अदर यंग वन सून आफ्टर पार्चुरेशन और हैचिंग, बट इन केस ऑफ नॉन फेवरिंग इट विल नॉट हैपन. ओके. प्रिकोशियल यंग, अनदर इज आल्ट्रिशियल यंग. इट मीन्स दैट प्रिकोशियल यंग मीन्स जैसे पैदा होगा कंप्लीटली बर्थ है, नो मोर एक्स्ट्रा ग्रोथ इज रिक्वायर्ड एक्सटर्नली. वेरएज आल्ट्रिशियल यंग मीन्स कुछ डेवलपमेंट बाद में भी जरूरी पड़ता है. जैसे आप कंगारू लेंगे, पूरा कंप्लीट बर्थ बाहर आने के बाद भी कुछ पीरियड तक उसको रेयर करना पड़ता है, अदरवाइज द यंग वन विल डाई. But in case of cattle, if it is the calf born on 0 day, if mother dies, still you can rear the young one. But in case of altricial youngs, okay, that is not possible. Okay. A response to man, short flight distance, okay, little disturbed mind, which is favorable. Vice versa is not favorable. Okay. Similarly, food habit case of say omnivorous, always it is favored because it can eat anything and everything. So naturally that can survive better. Adaptation to a wide range of environment and limited agility means जल्दी एग्जिट नहीं होता है, वो सब फेवरेबल. On the other hand, specialized dietary habits require a specific habitat, extremely agility, they are non-favoring. जैसे कैट है, कैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी कार्निवोर. आप वेजिटेरियन फूड से डॉग को पाल सकते हैं, बट कैट को आप पाल नहीं सकते. ओके. सो दैट वी कॉल इट स्पेशलाइज्ड डाइटरी हैबिट्स. ओके. So these are the some of the favorable and non-favorable characteristics which will help in the domestication process. इसीलिए सारे स्पीसीज आज के दिन में डोमेस्टिकेटेड नहीं, और यही स्पीसीज है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक. ओके. जस्ट टू कंक्लूड दिस टेबल, दो स्पीसीज आर इंडिविजुअल least disturbed under the confinement are most likely to become parents of domestic forms. Strong flight and fright response to man may be adaptive in nature, but in confinement, these responses may be a source of agitated behavior and possibly injury. You got my point? जिसमें strong flight and fight reaction होता है wild condition में, ठीक है, सर्वाइवबिलिटी के, बट वही चीज confinement में भी आज भी अगर एग्जिबिट करता है, देन उसमें क्या होगा, हमेशा एनिमल एजिटेटेड रहेगा और जिसकी वजह से इट विल गेट इंजर्ड, इट विल गेट इंजर्ड. इसलिए ऐसे एनिमल उसको बहुत ज्यादा जगह स्पेस जरूरत पड़ता है. ठीक है. अप्रेंसिव एनिमल्स मे नॉट मेट एंड डिस्टर्ब मदर्स मे डेजर्ट और ईट देयर यंग वंस. ओके. एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस रिप्रोडक्टर्स में भी इनहिबिटेड. मीन्स कुछ एनिमल में ये अप्रेंसिव एनिमल्स होते हैं, मेटिंग में भी प्रॉब्लम होगा, और अगर इफ इट हैज कंसीव्ड एंड गिवन बर्थ यंग वन, उस समय भी अगर वो अप्रेसिव बिहेव होगा, एनिमल में किल दी यंग वन. तो जैसे कैट में होता है, कैसे डॉग में होता है, जैसे पिग में होता है. ठीक है. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैनिबलिज्म, इट इज आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट वाइल्ड प्रॉब्लम. ओके. सो दीज आर द सम ऑफ द फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल. कहने का मतलब है इवन डोमेस्टिकेशन फुल्ली होने के बाद भी
कुछ अनफेवरेबल बिहेवियर आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नेस्टिंग बिहेवियर इन पीक, यू गॉट माय पॉइंट, रूटिंग बिहेवियर इन पीक. So these are the behaviors which are not favored, but still it's a domesticated animal. अगर वही एनिमल कन्फाइनमेंट में रहेंगे तो एनिमल इज गोस अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस ड्यूरिंग दैट पीरियड. अगर आप पिग को जिस समय फेरोइंग होगा उस समय बेडिंग मटेरियल नहीं देंगे, सिंपली आप फेरोइंग क्रेट में रखेंगे, हो सकता है आपके लिए एनिमल सीम्स टू बी ओके, बट एनिमल पर से इट इज ऑलवेज एजिटेटेड, डिस्टर्ब्ड एंड इरिटेटेड. ओके, because that wilderness behavior still persists in the domesticated animals. Okay, इसलिए based on this concept only we try to use few animals. ठीक है, wild animals means आज भी altered नहीं हुआ, उसको artificially select नहीं किया. उसका opposite animal, tamed animals, जैसे wild animals को हम लोग circus में रखते हैं, that we call as a tamed animals, means they are not genetically altered but behaviorally they are altered by training. Okay, by giving some sort of a cognitive training दे के, conditional training दे के, उनको जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से उसको करवाते हैं. They are called tamed wild animals. वो tamed wild animals पे फिर आप फॉरेस्ट में छोड़ देंगे, वो भी बच नहीं पाएंगे. You got my point? Similarly, other end, wild animal का opposite हो गया domestic animal. Okay, it means that they are genetically modified and now they are cool and calm and solely depend on humans. Feral animal, again these are the domestic animals now live in the wild without any human assistance. ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगा. आज भी कुछ फॉरेस्ट में जाएंगे थे, जैसे राजाजी नेशनल पार्क, ओके, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, आज भी वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिक एनिमल्स है, वो डोमेस्टिक ह्यूमन सिविलाइजेशन एरिया में नहीं रहते. वाइल्ड फॉरेस्ट में बफर जोन एरिया होता है, इन एंड अराउंड दी वाइल्ड फॉरेस्ट, जो कोर जोन से बाहर वाला बेल्ट होता है उसको बफर जोन कहते हैं, जहां डोमेस्टिक एनिमल रहे वाइल्ड कंडीशन में रहता है, दैट वी कॉल एज ए फेरल एनिमल. वेरी टिपिकली वाइल्ड एनिमल्स को ट्रेनिंग देके टेम्ड एनिमल हो जाएगा, डोमेस्टिक एनिमल वो वाइल्ड कंडीशन में छोड़ देंगे तो फेरल एनिमल्स हो जाएगा. ओके, सो these are the terms generally used, this only academic point of view but not for any other purpose. Okay, importance of domestic animal domestication and animal welfare, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहले जैसे बताया था, इट हैज बीन सेड दैट अगर डोमेस्टिकेशन नहीं होता ह्यूमन रेस एग्जिस्ट ही नहीं होता, बिकॉज उसके पास इतना डिपेंडेंट फैक्टर होता वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता. ओके, दूसरा, ह्यूमन एंड एनिमल रिलेशनशिप इज नाउ म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट एंड पीपल इंटरेक्ट विथ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन ए नंबर ऑफ थिंग्स. तो आज डोमेस्टिकेशन होने के कारण आज एग्जिस्ट हुआ है, और एग्जिस्टिंग कंडीशन में भी एनिमल का रिक्वायरमेंट ह्यूमन बींग्स के लिए इतना ज्यादा हो गया है, विथ रेस्पेक्ट टू फूड, with respect to milk, even with respect to bondage. Okay, and domestic animal have content with a complex environment and they have variety of method to attempt to cope up with it. Means वो आपका environment में, means civilized environment में वो इतना already complex environment रहने के बावजूद भी they are adjusted to such extent by coping up with the variety of environment which exists in and around the human being. Okay, and this coping method includes physiological changes in the brain, adrenal gland, immune system and linked to some of the behavior. इसीलिए हम लोग बिहेवियर को पढ़ाते हैं, आपका नेक्स्ट क्लास में जब होगा वहाँ 3 वर्ड यूज करते हैं. ओके, जैसे हम लोग वाइसेस कहते हैं, अबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं. अबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए पहले नॉर्मल बिहेवियर समझना बहुत जरूरी होता है. नॉर्मल बिहेवियर समझने के लिए नॉर्मेटिव बिहेवियर समझना बहुत जरूरी होता है. नॉर्मेटिव बिहेवियर मतलब जो वाइल्ड एनिमल में वाइल्ड कंडीशन में रहता था उसको कहते हैं नॉर्मेटिव बिहेवियर. बट वही वाइल्ड एनिमल में ह्यूमन हैबिटेट में आफ्टर डोमेस्टिकेशन आने के बाद जो एडजस्ट होके एक बिहेवियर एस्टेब्लिश हो गया उसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल बिहेवियर. स्टिल दे आर नॉट नेचुरल बिहेवियर, ठीक है ना, बट हम रखते 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 एक कुछ बिहेवियर जो चेंज हो गया उसको हमने नॉर्मल मानने लगे. So that's what normal behavior, ठीक है, and that is only due to coping by changing the some physiological changes in the body. Okay, some factors that affect an animal may result in it having a great difficulty in coping and it may fail to cope up with its fitness, is reduced or either it dies or it fails to grow. Means कभी कभी कोप अप कर ही नहीं पाता जिसकी वजह से एनिमल डेथ भी हो सकता है और प्रोडक्शन परफॉर्मेंस कम भी हो सकता है. ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट स्लाइड. उसका सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन दो ही तरीका है। फर्स्ट ट्रेंड ये है, कहते हैं ह्यूमन को एनिमल मान के चलो, ताकि एनिमल को भी आप इक्वली ट्रीट करेंगे, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड है एनिमल को ह्यूमन जैसे ट्रीट, वैसी वार्ता जिस तरीके से वो है जैसे हम हैं, या जिस तरह से हम हैं वैसे एनिमल भी है। अगर दोनों में एक चीज अगर मान लिया, देन नेचुरली यू आर बोर्न टू ट्रीट द एनिमल वेल। दोनों नहीं मानेंगे, देन इट ऑल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, इट ऑल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड विच इज बाउंड टू हैपन, इट इज बाउंड टू हैपन। ओके, तो डोमेस्टिक प्रोसेस का कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है। आज भी हम लोग क्या है ना, डोमेस्टिक प्रोसेस होने के बाद भी बहुत सारे इंटेंसिव सेलेक्टिव ब्रीडिंग से बहुत सारे चीजें हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे मिल्क प्रोडक्शन मोर देन रिक्वायर्ड। इतना मिल्क प्रोडक्शन आप उस एनिमल से एक्सपेक्ट करेंगे ताकि वो प्रोडक्शन लैक्टेशन में भी वो लैक्टेशन स्ट्रेस में रहता है, विच नॉट सपोज टू हैपन। ठीक है ना, उसको मिल्क इतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए जब तक वो लगता है एनिमल कोप अप कर रहा है। बट बिहाइंड दैट इफ इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, जिसकी वजह से बॉडी पूरा फिजियोलॉजिकली चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मिल्क फीवर आ रहा है, जिसकी वजह से लेमनेस आ रहा है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सिमिलरली उस सिलेक्शन प्रोसेस में और ब्रीडिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीजें सम एनिमल में लाए हैं, वो आज के दिन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, खासतौर से डॉग में। बहुत सारे ब्रीड्स आप देखा होगा, बॉक्सर, बुलडॉग, मैस्टिफ, ठीक है ना, कॉकर स्पेनियल, दीज आर ऑल एवॉल्व ब्रीड, दे नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं करते थे। कुछ डॉग्स आपने टू लुक मोर फेरेशियस आपने ब्रीड किया, जिसमें बॉक्सर है, बुलडॉग है। ठीक है, कुछ ब्रीड को आपने इतना बड़ा दिखाने के लिए जाइगेंटिक जनरेट, जैसे सेंट बर्नार्ड, ग्रेट डेन, ये सब इवॉल्व ब्रीड्स नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, उसका एंसेस्टर सम अदर ब्रीड्स आते हैं। बट आपने क्रॉस करते 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 इतना आपने मॉडिफाई कर दिया, आज के दिन में उस ब्रीड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है। जैसे बुल मैस्टिफ में, बॉक्सर में नोस छोटा होने के कारण ब्रीथिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी किसी हेयरी ब्रीड में थर्मोरेगुलेशन प्रॉब्लम आ रहा है, किसी किसी जो ब्रीड में जो वाइल्ड कंडीशन में बहुत फेरोशियस हुआ करता था, उसको कंपेनियन जैसे डॉग रखने लग गए, और आप घर में रखते रखते आपको उसका ज़्यादा एक्सरसाइज जितना उसका एक्सपेक्टेड है उतना आप जब दे नहीं पाते हैं, तो अगेन इट लीड टू ए प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ एनिमल जो पेट एनिमल का लायक नहीं है बट उसको पेट एनिमल बना दिया, जैसे पिग है, ठीक है ना, जो नॉर्मल डोमेस्टिक पिग, उसको पेट एनिमल जैसे भी रखते हैं, बट आप घर में रख लेंगे तो आपका रूटिंग बिहेवियर एग्जिबिट नहीं कर पाएगा, नेस्टिंग बिहेवियर, जिसकी वजह से एनिमल परेशान। दिस आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द डोमेस्टिकेशन, ऑल्दो दे आर वेरी फ्यू which can be controlled, and there are so many rules and regulations, laws to prevent all these things. Okay, another important parameter, chronological development of animal domestication, just you can read out which are the species first domesticated. Okay, dog, sheep, goat, cattle, buffalo, pig, horse and chicken. This is academic point of view and exam point of view important step. Okay, so now human animal interaction under the domesticated animals, जब आपको पता है human animal interaction is inevitable, then you have to know how to interact with the animal. That is a big question. अब तक जो भी हमने डिस्कशन किया डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स दे हैव बिकम इंटरडिपेंडेंट। नाउ यू हैव टू इंटरेक्ट विद द एनिमल्स इन डिफरेंट वेज एंड मीन्स फॉर द डिफरेंट पर्पस। उसी की वजह से सारे कहानी अभी तक रेवोल्यूशन, हमने इवोल्यूशन डिस्कस किया, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस। और एनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन का जो एरिया उसको कहते हैं एंथ्रोजोलॉजी, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है ऐसे एंथ्रोजोलॉजी, वेयर इन इट स्टडीज अबाउट द ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन और ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। ओके, सो नाउ एनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। कंपेनियन एनिमल मीन्स मोर क्लोज एसोसिएशन विद द एनिमल, नॉट फॉर द सेक ऑफ यूटिलिटी, नॉट फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक्स, मोर ऑफ कंपेनियन। जहां हमने बॉन्ड का बात किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉन्ड, वहां तो एनिमल इंटरेक्शन और क्लोज होता है। ठीक है, हम लोग पहले एक मन में चीज ध्यान में रखना चाहिए, डोंट थिंक दैट इफ यू कीप ए डॉग एंड इफ यू आर फीडिंग वेल इट मीन्स दैट एनिमल इज हैप्पी। उसी तरह से आपका फार्म एनिमल्स है, यूटिलिटी एनिमल्स है, अगर उसको ठीक ठाक से स्पेस दिया, ठीक ठाक से खिलाया, इसका मतलब ये नहीं कि एनिमल्स आर हैप्पी। देयर इज बिहाइंड सम डोमेन which you have to take care of. Okay? So that's the whole purpose of this thing. Okay, so it's a companion animal में क्या है? So here more related to social and emotional roles.
क्योंकि आपके साथ रहने के बाद वो एक बॉन्ड एस्टेब्लिश करेगा, जैसे उसके साथ आप डेवलप करेंगे वैसे एनिमल भी आपके साथ एक एस्टेब्लिश करेगा। वो डॉग जो है घर में रखा है तो बाहर छोड़ देंगे तो दूसरे डॉग के साथ एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएगा। आपने जानते हैं, आप वही डोमेस्टिकेटेड डॉग आप और रेयर डॉग जो है आप स्ट्रीट में ले जाएंगे तो जो स्ट्रीट डॉग से उसको डरा देते हैं, बट आपको उसको प्रोटेक्शन के लिए आपको जाना पड़ता है, बिकॉज इट इज लास्ट इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉन्ड विद द अदर डॉग्स। नाउ इट इज एस्टेब्लिश्ड ए बॉन्ड विद द ह्यूमन बींग्स विथ इन दी होम ऑल्सो। हो सकता है आउट ऑफ 5 मेंबर्स 2 लोगों के साथ अच्छा बॉन्डेज होगा, 2 लोगों के साथ अच्छा बॉन्डेज नहीं भी हो सकता, because of well treatment or ill treatment, whatever it may be. But anyway, it is to state that human animal interaction जो है कंपनी एनिमल के साथ अलग अप्रोच होगा, यूटिलिटी एनिमल के साथ अलग अप्रोच होगा। इसलिए आज भी कंपनी एनिमल को जो ओनर को गार्जियन भी कहा जाता है ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड, ओके। इसलिए ओनरशिप सर्टिफिकेट बहुत मैंडेटरी हो गया सब जगह में। और जब इंटरेक्ट करते हैं जनरली क्या होता है, स्मेल, हियरिंग, टच, हाई साइट होता है, बट डॉग एंड कैट में वेरी स्पेसिफिकली सिंस इट इज यूज्ड एज ए कंपेनियन एनिमल, गेज, जिस तरीके से आंख लगा के, द वे यू लुक और पीप इनटू द आईज ऑफ डॉग, दैट इज द वन विच एस्टैब्लिश द बॉन्डेज। ठीक है ना। अगर आप डेली उसको आई टू आई कांटेक्ट करके इंटरेक्ट करते हैं और एक दिन आप नहीं करेंगे तो वो डॉग बहुत परेशान हो जाएंगे। जब तक आप अगेन आई टू आई कांटेक्ट करके जब तक आप बोलेंगे नहीं है तब तक इट फील लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट विच यू मे नॉट अंडरस्टैंड। आप आज मूड में नहीं है तो उसके साथ नहीं खेलना चाहते, आज मूड में है आप ज्यादा खेलना चाहते हैं, बट डॉग के साथ ऐसे नहीं हो सकता, ओके, बिकॉज ऑफ दैट इंस्टिंक्ट, गेज इंस्टिंक्ट विच इज वेरी स्ट्रांग इन केस ऑफ डॉग एंड कैट, ओके। वो क्यों हुआ है आप देखिए, इवन डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में भी पहले वो हंटिंग के लिए हेल्प करते थे और फेवरेबल कैरेक्टर होने के कारण ह्यूमन बींग्स के साथ में रख लेंगे, बट धीरे धीरे वो इंटरेक्शन कम्युनिकेशन ज्यादा होते होते देर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ bond due to this gaze which is facilitated through oxytocin mediated positive loop। ठीक है, जब भी आई टू आई कांटेक्ट करते हैं देर इज a release of oxytocin both in the human being and in the dog which gives a type of satisfaction, a type of oneness, a type of concernedness। ठीक है ना। तो इसलिए आपको अगर आप एक बार डॉग रख लिया देन यू हैव टू सी दैट दीज आर वेरी सिली थिंग्स बट दे आर वेरी सीरियस इश्यूज, ओके। बट यूटिलिटी एनिमल के साथ जैसे फार्म एनिमल्स है उसके साथ अलग तरीके से होता है। देर इट इज नॉट इंडिविजुअल, इट इज नॉट 1 to 1, इट इज 1 to group। मीन्स आप ओवरऑल का बात करेंगे बट नॉट इंडिविजुअली। एक्सेप्शन केसेस में हो सकता है जो लोग 1 और 2 गाय रखते हैं उनके साथ एक बॉन्ड एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, बट लार्जर ग्रुप में जो रहते हैं वो हमेशा इतना स्ट्रांग नहीं होता है। बट वहाँ एनिमल इंटरेक्शन का जो पर्पज अलग होता है, बिकॉज कंपेनियन एनिमल में आपका कंपेनियन के साथ, यहाँ क्या है ना आपका रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। वहाँ आपका इंटरेक्शन होगा दूसरे कंटेस्ट में, दूसरे कंटेस्ट में मतलब what type of feed to be offered, what type of feed to be offered, okay, how frequently feed to be offered, that is the interaction with the animals। ठीक है ना। आप बिहेवियर को देखे एनिमल को भूख लगा नहीं लगा, एनिमल को देखे रियली दे आर एंजॉयिंग इट और नॉट, दैट इज द इंटरेक्शन विद एनिमल बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर यू आर एबल टू इंटरेक्ट, ओके। So this is so for interaction, but in the process of interaction, in the process of domestication, but sometimes it lead to conflict of human interest। क्यों एनिमल इतना रखने के बावजूद भी इल ट्रीट करते हैं बहुत लोग, क्यों इसको इतना ज्यादा इमोशनली डिसलाइक करते हैं, क्यों बहुत लोग जनरली उसको अवॉइड करते हैं। रीजंस कुड बी मेनी थिंग्स। क्यों है, एक तरफ आप उसको प्यार देते हैं दूसरी तरफ मारते हैं, दैट इज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। यू गॉट माय पॉइंट। फर्स्ट इज when you make a relationship with a dog and cat you establish a bondage, isn't it? But the same animal if it is killed for something else, हो सकता है डॉग फूड के लिए, हो सकता है क्लॉथिंग के लिए और एनी अदर पर्पस, देन लोगों को मन में एक तरह से डिसलाइक कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना। उसी तरह से व्हेन एनिमल को आप क्लोजली रेयर किया फ्रॉम उसका यंग वन जिस तरह से बर्थ हुआ उसके टिल स्लाटर तक आपने उसको डे बाई डे देखा, एक इमोशनली आपने देखते देखते एक अटैचमेंट हो गया, बट सडनली आप उसको स्लाटर के लिए भेज रहे हैं, आपका एक टाइप ऑफ अंदर दुख
पैदा होगा। दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी। मीन्स एक तरह से अंदर से जो नॉन एक्सप्रेसिव है, आप बोल नहीं पाते बट आपको मजबूरी है। आपने रेयर किया है, जब छोटा था आपको दूध भी पिलाना पड़ा वीनी की वजह से, आपने ग्रो किया, बड़ा हो गया, ना स्लाटर बेच रहे बट दुख हो रहा है, बट इट इज इनएविटेबल, इनएस्केपेबल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट इन द ह्यूमन इंटरेस्ट फॉर द एनिमल्स। ओके, बट आपका एक तरह से अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, आप उससे बच नहीं सकते। ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस कॉग्निटिव डिसोनेंस? दिस इज नथिंग बट ए अनप्लेजेंट इमोशनल फीलिंग of the people experience when they hold conflict or incompatible views or motivations such that they will change their attitude or their behavior to overcome this। मतलब आपको इतना दुख लगेगा, आपको इधर पारना भूल जाएंगे, आप दाग रखना पसंद नहीं करेंगे, या आपको मीट करना छोड़ देते। बहुत लोगों के साथ होता है। कितना लोग वॉरेशियस ईटर्स, मुस्लिम्स भी है, बहुत लोग वेजिटेरियन हो चुके हैं। कभी कभी फील हो जाता है, सडनली हो जाता है किसी किसी के साथ। ठीक है ना, पूरा चाइल्डहुड में खाया, अडल्टहुड में खाया, बट एक स्टेज में कहीं ना कहीं उनको ये कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाता है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। ओके, एंड दैट चेंज कैन बी टू टाइप्स। ईदर पीपल में डिसरिगार्ड हाउ बैडली फार्म एनिमल्स सफर सो दैट दे कैन कीप ईट मीट। मीन्स एक कैटेगरी ऑफ पीपल होगा, जो भी होगा जैसे भी होगा, ठीक है यार चलता है, हम खाना बंद नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं, टू ओवरकम दिस कॉन्फ्लिक्ट ईदर दे बिकम वेजिटेरियन, और उसको हार्म करना बंद कर देते हैं या उसको पालना बंद कर देते हैं। कितना बार स्नेक चार्मर्स जो है वो लोग धीरे धीरे मारते मारते एक टाइम में ऐसे आ जाते हैं, यार हम गलत कर रहे हैं, उसके बाद फिर वही दे स्टार्टेड बिकमिंग गाइड्स। ओके, वही लोग उसको पालने लग जाते हैं, कंजर्वेशन के लिए लड़ते हैं। बहुत लोगों के साथ ये हुआ। ठीक है ना। सो दीज आर कॉल्ड ए कॉग्निटिव डिसोनेंस। ओके, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है। बट फिर भी बहुत लोग के साथ ये हो नहीं पाता है, और वो लोग अपने आप को जस्टिफाई करते हैं बाय गिविंग लॉट ऑफ जस्टिफिकेशन। ओके, इट इज इनएविटेबल। जब इनएविटेबल है उसका कारण हो सकता है, जैसे कितना लोग जिस तरह से स्लाटर करते हैं एनिमल को, ठीक है, जिस तरह से मारते हैं, सफरिंग होता है, उसको देखते हुए, कि बहुत लोग मीट ईटर भी देखा नहीं है, जिस तरह से एनिमल सफर होता है वो लोग देखा नहीं है, इसलिए उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। बट किसी ने देखा, उसको दुख हो जाता है। ठीक है, उसको इधर एस्केप होना है, इसको एक्सेप्ट करना है। अगर एक्सेप्ट करना है देन यू हैव ए थ्री अप्रोचेस। वन इज रिचुअल है, यार हमारा पहले से चलता आ रहा है, ये मीट खाने का जो हैबिट है सिंस बिगिनिंग, इट इज ए पार्ट एंड पार्टिसिपल और कल्चर, इसीलिए इसको मान। ठीक है, अनदर इज सेपरेशन, अनदर इज ऑब्जेक्टिव। जस्ट क्विकली विल डिस्कस विदाउट टेकिंग मच टाइम। रिचुअल्स, ठीक है ना, आप इसको एक रिचुअल मानते हुए आप इसको जिस तरीके से एनिमल को किल करते या स्लाटर करते उसको भी नॉर्मल मानते हैं। ठीक है ना, और उसको जस्ट सेटिस्फाई योर सेल्फ, उसको भगवान के सामने पूजा करके प्रेयर करके उसको मारते, बाद में खाना आप पीजिए। बट एक मन में एक सेटिस्फेक्शन के लिए आप मंत्र पढ़ाते हैं, ताकि इसको हमने भेंट दिया भगवान को, और उस एनिमल के लिए सारे पूछते हुए आपने प्रेयर किया। दिस इज टाइप ऑफ रिचुअल्स। Second is separation, an alternative in which dissonance thought to be avoided by separating affectionate and utility relationship, with which a limited group in the society actively engage in the killing of animals। आप नहीं मारेंगे, मारने के बाद आप खाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे। जैसे एक हमारा एक डीन थे, मैं जहाँ पन्नागर में था, वो पंडित जी थे। जिस दिन एनिमल पब्लिक एक्शन हुआ करता था, उस समय वो छुट्टी लेते थे। उनको लगता था कि ये एनिमल डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टार्टर में जाएगा, मेरे से पाप नहीं हो सकता, वो अपने आप को अलग कर लेते थे। दिस इज टाइप ऑफ ए सेपरेशन। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिफिकेशन सिंपल है, इसको कमोडिटी जैसे ट्रीट कर दिया। वीविंग एनिमल मोर लाइक ऑब्जेक्ट और लेस लाइक सेंटिनेंट। ठीक है, जैसे आपको कमोडिटी माना तो आपका कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं, मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं है। जस्ट यू थिंक दैट इट इज वन ऑफ द फूड आइटम, जस्ट यू ईट एंड एंजॉय। ओके, एंड उसमें आपको कोई जस्टिफिकेशन देने का नहीं है, जो लोग दूसरे लोग कर रहे हैं उसी चीज को आपने ऑब्जेक्ट मान लिया और उसको खाने लगे। ठीक है ना। सो दैट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन। नाउ लास्ट पॉइंट फॉर द टुडेस लेक्चर, दैट इज ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन। ओके, पॉजिटिव इंटरेक्शन हो सकता है, नेगेटिव इंटरेक्शन हो सकता है। दिस इज
being highlighted too much in the एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, एनिमल को आप एक अडल्टहुड होने के बाद कितना भी आप बताएंगे, आपका मेंटल एटीट्यूड और मेंटल मेकअप चेंज होगा। अगर आप चाइल्डहुड में कुछ चेंज करेंगे, चेंज द एनिमल बिहेवियर और यू कैन से चेंज द ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स द एनिमल बाय चेंजिंग द ह्यूमन बिहेवियर एट द चाइल्डहुड, सिंपल। इसीलिए जो एनिमल को इल ट्रीट करते हैं, अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं लोग, जो बहुत इल ट्रीट करते हैं वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर चाइल्डहुड वाज समथिंग लाइक ट्रॉमा। अपना एक प्रॉब्लम उन्होंने देखा, घर में लड़ते हुए देखा, घर में गाली देते हुए देखा, घर में किसी एनिमल को मारते हुए देखा, इसलिए उनके अंदर में भी वो नेगेटिव आ जाता है और उसी की तरफ से एनिमल में भी वो लोग नेगेटिवली ट्रीट करते हैं। ओके ना, means we mean to say that interaction with animal, regardless of whether they are positive or negative, there depends on the people's cultural background, their belonging to subculture, but also on their upbringing. But ये जो culture है, again it depends upon the national culture, professional culture, local culture. National culture means कैसे एनिमल को नेशनल लेवल में ट्रीट करते हैं, कितना इंपॉर्टेंस दिया। अगर आप सीरियसली दिया, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेगा ताकि एनिमल को हिल ट्रीट नहीं किया जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका प्रोफेशन में इतना स्ट्रांग आपने कल्चर दिया ताकि एक टाइप ऑफ अटैचमेंट आएगा। अदरवाइज इट इज वेल प्रूवन एंड इट्स वेल एस्टेब्लिश्ड दैट जो लोग उसी प्रोफेशन में रहते हैं उनका ही जनरली नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है, बिकॉज उनका ये डे टू डे एक्टिविटी देखते 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 वो आदत बन जाता है। इसीलिए दे स्टार्टेड इग्नोरिंग ऑल द सफरिंग ऑफ द एनिमल्स। इट इज डू हैपन। इफ यू टेक प्रोफेशनल कल्चर में वेटनरियंस का ही देख सकते हैं। अगर डेली आपको बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, मनोज अनदर 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स क्लास लेने, 5 मिनट्स जस्ट। तो प्रोफेशन में भी ऐसे हो जाता है। अगर मान लीजिए आपको प्रोफेशन में भी रहते रहते बहुत सारी चीज को आपको इग्नोर करना पड़ता है, वो भी एक तरीका है। लोकल कल्चर में तो आपका किस तरीके से आप देखते हैं उसी के ऊपर डिपेंड। अगर मान लीजिए आपका बेल्ट है, सपोज इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ नॉन वेज खाने का नॉर्मल कल्चर है, डॉग मीट खाने का नॉर्मल कल्चर है, तो उस कल्चर में रहेंगे तो आप देखते देखते एक आदत बन जाएगा। ठीक है ना, तो उसी तरह से जो आपका इंटरेक्शन विद एनिमल डिपेंड्स प्योरली ऑन द बैक, how you have been brought up. Okay. Positive animal interaction, positive interaction with animals will result of social learning from the parents, especially mothers. हो सकता है वो आप एनिमल के साथ इंटरेक्ट किया ही नहीं होगा, बट मदर भी कैसे चिल्ड्रंस को ट्रीट करते हैं वो भी उसी तरह से, वो चिल्ड्रंस जब बड़े होंगे एनिमल को उसी तरह से ट्रीट करते हैं। या घर में जिस तरह से मदर को अगर एनिमल घर में रखा है तो उस समय अगर डॉग को जिस तरह से ट्रीट करते उसको देखते रहते चिल्ड्रंस भी दे डेवलप दैट। ओके, आई रिपीट इट। चिल्ड्रन में विटनेस द केयरिंग रोल ऑफ अदर फीमेल मेंबर्स ऑफ द हाउसहोल्ड टू एनिमल्स अंडर देयर केयर एंड विल इमिटेट दिस बिहेवियर। मीन्स घर में जितना भी लेडीज होंगे और घर में जो एनिमल होगा उसको केयर करते हैं, अगर वो बच्चा देखता है उसी तरह से उसको मिमिक करेगा। अगर घर में नेगेटिवली ट्रीट किया एनिमल को, वो बाद में बड़ा होने के बाद वो नेगेटिवली ट्रीट करेगा, अगर पॉजिटिवली ट्रीट किया तो पॉजिटिवली ट्रीट करेगा। ठीक है ना, इन मेनी कल्चर चिल्ड्रंस विल गेन द रोल ऑफ एनिमल केयरटेकर एट वेरी यंग एज एंड हैव मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनिमल्स। आप गाँव में जाएंगे तो आपका डे टू डे आपका एनिमल रखना, उसको ग्रेजिंग के लिए ले जाना, उससे दूध निकालना, उसको खिलाना, आप वन और अदर वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूर इन्वॉल्व, तो आपको बहुत ज़्यादा अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं कैसे पालना, because already is imbibed in your culture and he has already imbibed that character in his blood. Okay, within the farming culture, interaction with animals will often be transferred from animal handlers to their successors. In both the cases, individual learn traditional handling technique. Means अगर फार्मिंग का बात आता है वहां भी किस तरह से जो एल्डर्स होंगे उस एनिमल को हैंडल करता है। अगर मान लीजिए एनिमल का खूब ट्रीट करना, उसको रूडली हैंडल करेगा, रूडली रेस्ट्रेन करेगा, रूडली कास्टिंग करेगा, तो बाद में ये भी देखते देखते उसी तरह से हैंडल करेगा।
अगर उसको ह्यूमनली हैंडल करेगा, बाद में ये भी ह्यूमनली हैंडल करेगा. That positive interaction between the humans and animals should be mutually beneficial for the. इसलिए that is very very important. Okay, whether it's a dog or any farm animal. Okay, जैसे डॉग्स है, थेरेपी, जो डॉग्स मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो मेंटली सिक है, मेंटली इल है, उसके लिए अगर डॉग्स को आपने पाला है, ठीक है ना, सो इन दैट केस these dogs often belong to working dog breed and need to be presented with a task they can fulfill in order to maintain a good psychological welfare. Furthermore, the result of dogs work is beneficial to human beings and therefore both the dogs and human benefit from this relationship. अगर मान लीजिए मेंटली सिक पर्सन को एक डॉग दे दिया और वो डॉग है टिपिकली स्पोर्ट्स डॉग है, उसमें क्या होगा, वो डॉग का एक्सपेक्टेशन अलग होगा, इनका एक्सपेक्टेशन अलग होगा. सो म्यूचुअली बेनिफिट होगा तो बोथ विल बी विन विन सिचुएशन. अगर मान लीजिए जहां आपका स्पोर्ट्स डॉग या दूसरा डॉग दे दिया, जहां उनका एक्सपेक्टेशन अलग है, वो चीज़ मेंटली सीख के वो दे नहीं पाएगा, देन नेगेटिव में चला जाएगा. ओके, so positive interaction with animals are often taken for the granted and do not get adequate attention. However, it is important to highlight such interaction to enforce positive behavior and increase the animal. वही, that's what I am telling. Even in case of veterinary also, बहुत सारे चीज एनिमल के साथ ट्रीट करते करते या फार्म में रहते, बहुत सारे जो इल ट्रीट होता है, जो क्रुएलिटी अकरेंस होता है, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं. वो चीज नहीं होना चाहिए. नेगेटिव ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन इज जस्ट ऑपोजिट. अगर चाइल्डहुड में उनका चाइल्डहुड ट्रामा है, ठीक है, उनका अब्यूजिंग पेरेंट्स है, अगर कोई लीजिए इल ट्रीट करने वाला डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर उसको रिपीटेडली देखा, वो एनिमल के ऊपर भी उसका रेपरकशन दिख जाएगा. ठीक है ना. उसके जस्ट फ्यू एग्जांपल्स है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सेल्फ रिपोर्टेड रीजंस होते हैं, आउट ऑफ बोर्डम एनिमल को छेड़छाड़ करना जस्ट फॉर फन. जैसे बहुत लोग डाक का पूंछ को, टेल को पटाखा रखा, उसको फोड़ दिया, ठीक है, पत्थर से मारा, सो आउट ऑफ फन. ओके, सिमिलरली गुस्से में कुछ कर दिया. कुछ लोग डिसलाइक और फियर ऑफ द एनिमल्स, ये फॉरेन में बहुत होता है. जैसे एक फैमिली मेंबर में दो लोग हैं, एक को पसंद है, एक को पसंद नहीं. बहुत मेट्रोलीगल केसेस आपको मिलेगा. तो हस्बैंड को कैट पसंद है बट वाइफ को पसंद नहीं है, बट वो मार नहीं सकता है उसको. कभी कभी क्या करते हैं, वो उसको कभी ओवन में रख के मार देते हैं, कभी वॉशिंग मशीन में रख के मार देते हैं, बिकॉज आउट ऑफ इरिटेशन, क्विक डिसीजन टू कंट्रोल द एनिमल. दैट्स व्हाट हैंडलिंग है में बहुत हिल ट्रीट करते हैं. To have a sex with animals, that is bestiality, which you already know it. Okay, to take revenge, to shock or impress the people, or because of imitation of others. ठीक है ना. So these are self-reported cruelties, or you can say negative treatment of animals. Okay, so same thing has been given here also. Some are exploitative abusers, some are pathological abusers, some are delinquent animal abusers, and sometimes animal warding में हो सकता है, जो एनिमल हॉस्टल्स होते हैं, डॉग हॉस्टल्स होते हैं, जहाँ टेम्परेरी ट्रांजिट अकोमोडेशन होता है, जहाँ 100 एनिमल की कैपेसिटी है, 200 एनिमल रखते हैं, वहाँ आपका एनिमल अब्यूज हो सकता है. ठीक है ना. ऑर्गेनाइज्ड अब्यूज हो सकता है, जानबूझ के आपको कॉक फाइटिंग होता है, बुल फाइटिंग होता है, ये सब में जानबूझ के एनिमल को फाइट करने के लिए मौका देते हैं. दैट इज ऑल्सो एन अब्यूज. रिचुअलिस्टिक हो सकता है, सेक्सुअल ऑलरेडी बता दिया. सो दीज आर द सम ऑफ द नेगेटिव इंटरेक्शन विद द एनिमल. ओके, so with this I am ending today. Okay.